Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the anatomy of the nose. First of all, you should know the functions of the nose. In this diagram, you can see this is the most important function, that is the smell, and this in this diagram showing the oxygen and carbon dioxide by breathing through lungs. So the respiratory protection and olfaction. This is the olfaction, and this is the function related with the respiration. And in this diagram, the 4 number here I have written the air conditioning of the inspired air. So this function is showing the humidifying action of the nose. And in this diagram, the inhalation is also taken by the nose. So the functions of the nose are the respiration, olfaction, protection of the lower respiratory passages, how they protect by the presence of the hairs in the anterior portion, which prevent the entrance of the big particles, and the air conditioning of the inspired air. These are the functions of the nose. And nose is the most uppermost part of the respiration. Now, what are the features? In this diagram, these openings are known as the nostrils, and these sides are known as the ala of the nose, and this is this mean the nose is divided into anterior and posterior part. The anterior part consists of these nostrils and these ala of nose, and in the posterior part, which consists of the nasal cavity, the sides of these nasal cavity is known as the lateral wall of the nose, and this is the dorsum of the nose. And this in this diagram, this uppermost portion indicates as the root of the nose, and this is the tip of the nose. Below the tip and between the upper lip, this portion is known as the philtrum. So these are the external features of the nose and the parts of the nose. Now the internally the nose consists of cartilaginous portion and the bony portion. This blue color are the cartilages and these are the bones. And so this is the skeleton framework and this is the cartilaginous framework. The upper 1/3 of the nose, external nose, is bony, while the lower part is the cartilaginous. Which bones take part in the formation of the upper 1/3? This is the nasal bone, which forms the bridge of the nose, and this is the frontal process of the maxilla. So these bones, 2 bones are involved in the forming the bony part of the upper part of the nose, and the lower part, which is cartilaginous. These blue color structures are the cartilaginous. This cartilage is known as the lateral nasal cartilage, and this one is the major alar cartilage. मैंने आपको बताया था एला था नीचे वाले पोर्शन पे, greater alar cartilages, and these are the lesser alar cartilages. और ये फैट होगा यहाँ पे, ठीक है, फाइब्रोफिटिक टिश्यू होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई बोन के नोज के अपर पार्ट जो बोनी है उसमें कौन सी बोन्स आती हैं, लोअर पार्ट जो कार्टिलेजिनस है उसमें कौन सी बोन्स आती हैं। एंड दीज आर दी वाइब्रेसी मीन, अब अगर हम एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज की बात करें तो उसमें स्किन है, इसमें हेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें फिर सेबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे, ठीक है। तो दिस स्मॉल एंटीरो इंफीरियर पार्ट इज लाइंड बाय द स्किन and this portion is known as the vestibule of the nose. A large posterior part is lined by the mucosa. जो पीछे जाएंगे तो उसमें nasal cavity में is lined by the mucosa proper of the nasal cavity, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी पहले, इस एंटीरियर पार्ट की, मीन वेस्टिबुल ऑफ नोज। वेस्टिबुल ऑफ नोज में ये आपको हेयर नज़र आ रहे हैं, इनके साथ मैंने आपको बताया सेबेशियस ग्लैंड्स and the hair follicles,
and these hair follicles are stiff and interlacing hair follicles and are known as the vibrissae. ये वो है जो ह्यूमिडिफिकेशन और एंट्रेंस ऑफ द पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं और एक्ट एज ए कंडीशनिंग फॉर द रिस्पायरेशन. ठीक है. नाउ द नेजल कैविटी में प्रॉपर हम बाउंड्रीज को देखें तो हमारे पास रूफ है, फिर ये फ्लोर है. मेन तो ये, फिर अब लेटरल वाल, मीडियल वाल, जैसे अब इस डायग्राम में देखो ये वाली, तो ये दोनों साइड हैं लेटरल वाल की होंगी. जो मीडियल वाल है जिसको नेजल सेप्टम भी कहते हैं, ये नेजल सेप्टम होगा सेंटर में. और अगर ऊपर ये स्किन वाला पोर्शन देखें तो इसका कहेंगे ये रूफ है. नीचे जब अंदर इस नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर होंगे तो जो है वो फ्लोर होगा. तो ये वाल्स हैं किसकी, नेजल कैविटी. तो इन वाल्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. ये जो रूफ है, इस रूफ में ये बनी हुई होती है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट की. दिस वन इज द क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, ये वाली. अब क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में आपको यहाँ ओपनिंग्स नजर आ रही हैं. इसको इसीलिए कहते हैं क्रीब्रिफॉर्म, मीन छन्नी की तरह इसमें ओपनिंग्स होती हैं जो कि जहाँ से पैसेज हो रहा होता है ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स का. ठीक है. तो दिस रूफ इज लाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, this roof is lined by the olfactory mucosa which consists of the bipolar neurons which are helping for the olfaction function of the nose. ठीक है. तो roof is formed by the cribriform plate of the ethmoid bone, जिसमें से मैंने आपको आगे दिखाया कि वो उसमें ओपनिंग से जिससे olfactory nerve की फाइबर्स पास हो रहे हैं. ठीक है. दिस वन इज द फ्लोर. ये it is formed by the upper surface of the hard palate. This one is the hard palate. ठीक है. अब इसको अगर हम देखें तो ये anterior part है, ये posterior part है. तो it is formed by the hard palate, that is the anterior 3/4 is formed by the palatine process of the maxilla. Where is palatine process? This is the palatine process of the maxilla, anterior part. ठीक है. एंड पोस्टीरियर 1/4 इज फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन. पैलेटाइन बोन, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन. ये जो आपको इस तरह नजर आ रही है, ये बोन है. ठीक है. एंटीरियर वाले में कौन सी बोन आ गई, मैंने आपको बताया कि फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. और पोस्टीरियर 1/4 जो है इज फॉर्म बाय द horizontal plate of the palatine bone. यही वही चीजें हैं जो हार्ड पैलेट बनाती हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हम आएंगे किस पे, मीडियल वाल पे. मीडियल वाल. ठीक है. ये जो डायग्राम है जो शो की हुई है, दिस इज द मीडियल वाल. दिस मीडियल वाल इज आल्सो नोन एज द नेजल सेप्टम. ठीक है. अब मीडियल वाल इस डायग्राम में कौन सी होगी, ये वाली जो सेंटर में है. ठीक है. इसके अंदर, बाहर से तो हमने इसको डोर्सम ऑफ द नोज बोल दिया. अंदर जो सेपरेट कर रही है दो नेजल कैविटीज को, उसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम, विच इज आल्सो नोन एज द मीडियल वाल. ठीक है. मीडियल वाल में ये वाली, ये जो नजर आ रही है, इसमें देखो एंटीरियरली यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज है और बिल्कुल टिप पे जो सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलर कार्टिलेज. अगर एलर कार्टिलेज नहीं याद रहता तो कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए. दिस वाल इज आल्सो नोन एज द मीडियल नेजल सेप्टम. सो दिस कार्टिलेज इज द नेजल सेप्टल कार्टिलेज. ठीक है. और हम देखें पीछे यहाँ पे मीडियल वाल इज फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड. दिस इज द परपेंडिकुलर, ये पूरी जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन, मीडियल वाल. और सुपीरियरली से बनती है. ठीक है. इंफीरियरली हम जब आते हैं पोस्टीरो इंफीरियरली, ये हम कहते हैं पोस्टीरो सुपीरियरली, क्योंकि एंटीरियर पे तो हमारे पास कार्टिलेज है, नेजल कार्ट, सेप्टल कार्टिलेज. ठीक है. और पोस्टीरो, ये दोनों पोस्टीरियरली हैं, ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया. तो पोस्टीरो सुपीरियरली द नेजल सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, एंड द पोस्टीरो इंफीरियरली दिस इज द वोमर बोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द मीडियल वाल विच इज आल्सो नोन एज द नेजल सेप्टम. इसमें यहाँ इसकी क्लिनिकल कंडीशन जो कि आपको ENT में काम आती है
कि नेजल सेप्टम अक्सर बचपन में गिरता हर कोई तकरीबन है ही है, तो किसी किसी का नेजल सेप्टम जो है वो डेविएटेड मीन थोड़ा साइड में डेविएट हो जाता है। अगर माइनर डेविएशन हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं साइन सिम्टम्स, लेकिन अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाए जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करे तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। अकर्स ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स सच एज ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर वगैरह। इफ डीएनएस मीन नेजल सेप्टम जो डेविएटेड है एक साइड की तरफ जो हो जाता है। इफ डीएनएस इज सीवियर एंड काजिंग द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, या उसकी वजह से बार बार साइनसाइटिस हो रहा है और हेडेक हो रहा है बार बार, और एक्सेसिव स्नोरिंग में जो खर्राटे लगाते हैं, तो उसकी वजह से फिर इसको करेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा कट करना पड़ता है। ठीक है, सब म्यूकस रिसेक्शन करनी पड़ती है और उस ऑपरेशन को आप क्या कहते हैं, सेप्टोप्लास्टी। ठीक है, जो कि ENT की बुक्स में डिटेल में होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज। दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। इसकी फीचर्स देखो ये एंटीरियर में इसके पास भी कार्टिलेजेस हैं, तो लेटरल वॉल इज आल्सो नोन एज द एलर, जिसको हमने एला ऑफ द नोज भी बोला था। ठीक है, अब इस पे कार्टिलेजेस का नाम भी यही होता है, एलर कार्टिलेजेस। ये लेटरल एलर कार्टिलेज है, दिस इज द लेटरल क्रस्ट ऑफ द ग्रेटर एलर कार्टिलेज। या आप याद नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि एलर कार्टिलेज, ठीक है, एंटीरियरली मौजूद है। फिर यहाँ पे हम देखें इस पे फिर बोनी पोर्शन भी है। ठीक है, तो बोनी वॉल इज फॉर्म बाय दी, ये कौन सी है, नेजल बोन। तो पहले होगी नेजल बोन, फिर है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, फ्रंटल दिस वन, ये नीचे मैक्सिलरी बोन से ऊपर आ रहा है जो कि फ्रंटल बोन से जाके मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ दी मैक्सिला। फिर आती है लैक्रिमल बोन, कौन सी, दिस वन इज दी लैक्रिमल बोन। ठीक है, डिसेंडिंग प्रोसेस आता है उसका लैक्रिमल बोन। फिर आता है कॉन्की एंड द लेबिरिंथ ऑफ द इथामॉइड, ये आप बीच में यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर दी, ये सुपीरियर, ये मिडिल कॉन्का है। ठीक है, और उनके बीच में स्पेसिस वाले को हम कहते हैं मिएटिसिस। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द लेटरल वॉल। ठीक, ये है बोन। और फिर नीचे से आप देखो ये बोन जो आ रही है, दिस वन परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन से भी एक आ रही है, इससे भी बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो मीडियल टेरिकोइड प्लेट से भी ऑफ द स्फेनॉइड, ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ये तमाम बोन्स के नाम आपको आने चाहिए। लेटरल वॉल में बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, ये नेजल है, ये सॉरी हाँ, ये कौन सी है, ये वाली, ये जो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और ये कॉन्का है, सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्का, और ये मिएटिसिस है। और क्योंकि सुपीरियर मिएटस मिडिल मिएटस जो पार्ट होते हैं इथामॉइड बोन के होते हैं, जो इंफीरियर मिएटस होता है वो सेपरेट बोन होती है। ठीक है,